Good morning, students. So in previous class we have discussed about the various type of forces, okay, like contact force, in which we include two different characteristics force, that is friction force and friction force and the normal reaction, okay. And in non-contact force we have already discussed about the gravitational acceleration or gravitational force, electric force and magnetic forces, okay. And in the last time of class we discussed about the balance and unbalance forces. So let's discuss another more times about the balance and unbalance forces, okay. So balance and non-balance force. Okay. So as we discussed, balance means if the resultant force or the net force acting on a body is zero, then we say the body is at a balance condition. For example, we have already taken, if there is a ball on the floor and if we act two different forces opposite to each other, F1 and another force F2, okay, acting opposite to each other and the magnitude of the force are equal, then in such case we say the resultant force on the body is zero, okay. If I take the condition like F1 vector equal to minus F2 vector, okay, negative sign means the direction is opposite, okay, and F1 vector magnitude equal to F2 vector magnitude, okay. So if we find a condition like this, then we can say the force is balanced force, okay. This is the case of balanced force. This is the case of balanced force. So balanced force we can say if the resultant force, okay, here from this equation we can have F1 vector plus F2 vector equals to 0. What does it means? F1 is one force, F2 is another force, and their resultant, their net or total value is 0, okay. So when the resultant force acting on a body is 0, then we can say the force is or the body is under equilibrium condition, and balance force is also known as equilibrium force. So we can define like this: if the resultant force acting on a body is 0 or null vector. 0 or null vector. Null vector means that is also a 0. Okay, 0 is otherwise known as null vector. It means the total value is equal to 0. Okay, so acting on a body is 0 null vector, then it is under equilibrium forces, equilibrium or balance force. बुझीला पिले आ गोटे एग्जांपल तुम सिंपली नहीं पारिबो। मन कर तुम टेबुल ऊपर गोटे बही रखी दियो, मन कर टेबुल ऊपर गोटे बही रख, ओके। से बहीर जी जदि आम बहीर केस को आम ऑब्जर्व करवा, देख बहीटा भी कौन आसूची ना आम बैलेंस कंडीशन रे ही एक्जिस्ट करुच्ची। मन कर टेबुल ऊपर गोटे बही के प्लेस करदेवी, मन कर टेबुल ऊपर एमती टाइप रो आम कौन करवा ना गोटे बुक को प्लेस कर दियो। जदि टेबुल ऊपर मु बुक गोटे प्लेस कर दूची ताले कौन आसीबो ना से बुक ऊपर आम कहि परिबा रिजल्टेंट फोर्सटा भी 0 आसूची। केमिति रिजल्टेंट फोर्स 0 आसूची? जदि आम ऑब्जर्व करवा, देख बहीटा जेहेतु
टेबुल सरफेस सहित कंटाक्ट अच्छी टेबुल सरफेस सहित कंटाक्ट अच्छी ताने ये गोटे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हम आ से नॉर्मल रिएक्शन टा कौन मोर आसीबो ना वर्टिकली अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस टेबुल सरफेस को कौन रहिबो ना परपेंडिकुलर रहिबो ओके सपोज ये टाइप केस आम नहीं पार सपोज यहाँ है टेबुल ये मनकर बुकटा को प्लेस करदेली बुक प्लेस करदे देख ये बॉडीटा जो अच्छी या सहित जेहतु कंटाक्ट अच्छे आम कहीपर ये गोटे कंटाक्ट फोर्स एक्ट करुच्ची जोटा आम कहे नॉर्मल रिएक्शन कौन आसो ना से सरफेस को परपेंडिकुलर जदि से सरफेस को परपेंडिकुलर तार केमती प्लेस रही टाइप रहा मोर प्लेस ओके सेकेंड केस कौन आसूँ जेहेतु बुक्र किसी वेट एक्जिस्ट करुच्ची वेट कौन रहा वर्टिकली डाउनवर्ड ओके जो नॉर्मल रिएक्शन आसिला नॉर्मल रिएक्शन मन रहिला कोन ना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रहिला परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द टेबल सेकंड केस रे हम कहि पारे जेहेतु बुक रो किछि वेट एक्जिस्ट करूची मानकर से बुक रो मास हला m बुक रो मास केते अछि ना m अछि ओके जेहेतु से टेबुल ऊपर अच्छी ताले हम कहि परिया ता ऊपर किछि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अछि बा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अछि दैट्स व्हाई इट्स वेट बिकम्स वर्टिकली डाउनवर्ड तार वेट केते रहिबो ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रहिबो जदि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रहउची आ से बुकटा जेहेतु टेबुल ऊपर रेस्ट पोजीशन रे अछि ता माने r इक्वल टू एठी केते आसीबो mg आसीबो जेहेतु बुकटा रेस्ट पोजीशन रे अछि ताले हम कहि परिबा r इक्वल्स टू केते ना mg r equal to mg. So if r equals to mg like this, if f1 vector magnitude is equal to f2 vector magnitude and their direction is opposite, one is vertically upward and another one is vertically downward, so then we can say the body is at under the equilibrium condition. So if the force acting on a body is 0, then it is called a equilibrium or balance force. Equilibrium or balance force is otherwise known as concurrent force. Concurrent force means if a result of all forces at a point is 0, okay, जदि different forces गोटे common point रे act करूजंती आ सेमानका resultant value 0 आसुची सेटा हमें कहा जाए concurrent force. Concurrent means if the resultant of all the forces acting at a point is 0, then that is called concurrent force. Okay, एठी आ गोटे example नै पारे मनकर रोड ऊपर जो कार छिड़ा होची यदि रोड ऊपर कार रो कंडीशन को नबा से सेम टेबल टाइप रो कंडीशन आसीबो मनकर एटा रोड अछि ए रोड ऊपर कोन करबी ना गोटे कार को प्लेस कर दियो ओके मनकर रोड ऊपर तुम कार गोटे प्लेस कर दियो से कार ऊपर जब आम ऑब्जर्व करबा जेहेतु कार किसी मास एक्जिस्ट करूची तार वेट आसो कौन ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जोटा आम कहूँ mg आ कार जेहेतु रोड ऊपर रेस्ट अच्छी तमें इन सच केस वी कैन से द वैल्यू of normal direction is act vertically upward, okay, so that the resultant force on the body is 0 and the body is at a equilibrium condition. Okay, so if the resultant force ये type case नहीं परी मनकर दीटा force न होचे जब ये type different forces ने भी मनकर three force ने ली 1 2 3 f1 vector, that is f2 vector and that is f3 vector. Okay, so if three forces acting at a common point देख ये common point ऊपर act करूँगी जेहेतु तीनटा force common point ऊपर act करूँगी if the resultant of the force is 0, so if you find f1 vector plus f2 vector plus f3 vector equals to 0, then that is also called equilibrium force. Okay, so equilibrium condition नहीं पड़े if the resultant of all forces acting at a common point is 0, then that is called equilibrium forces. So in such case we can have like condition f1 vector plus f2 vector equal to minus f3 vector. Okay, and this is also an example of concurrent force. Concurrent force. Concurrent means if the resultant force at a point or if a resultant of different force acting at a point is 0, then that is called a concurrent force. बुझीला सेटा को हमें नहीं पारिबा इक्विलिब्रियम फोर्स आ इक्विलिब्रियम फोर्स केस रे ऑलवेज रिमेंबर द बॉडी हैज ए जीरो एक्सेलरेशन जदि गोटे बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अछि ताहा माने एठी हमें कहि पारिबा तार एक्सेलरेशन केते आसीबो ना जीरो
Okay, so if the body is under equilibrium force means it possesses zero acceleration. देखो यहाँ आम रेस्ट केस को नहीं मोशन केस रे भी कहबी जे केमिति आम इक्विलिब्रियम कंडीशन को आसीपर बा जीरो एक्सेलरेशन केस को आसीपर ये आम रेस्ट केस को गोटे नहीं रेस्ट केस रे जीरो एक्सेलरेशन कथा कहूँ मोशन केस रे भी आम जीरो एक्सेलरेशन कंडीशन को आसीबा जे मोशन केस रे आम गोटे ऑब्जेक्ट रो एक्सेलरेशन केमिति जीरो पाई परिबा ओके सेकंड सेटा आम देखा नॉन बैलेंस फोर्स केस रे बा जेटा आम कहूँ अनइक्विलिब्रियम फोर्स ओके सेकेंड देखा नॉन बैलेंस फोर्स नॉन बैलेंस माने हम कौन कहूचे ना इफ रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द बॉडीज जदि गोटे बॉडी ऊपर द रिजल्टेंट फोर्स जीरो आसु नाही तल से केस हम कहि परिबा दैट इज ए नॉन बैलेंस फोर्स ओके सो नॉन बैलेंस फोर्स मीन्स वी कैन से non-balance force okay so if the resultant of all forces at any point is not equals to zero is not equal to zero then it is called non-balance force non-balance force से आम कहीपर गोटे नॉन बैलेंस फोर्स बोली ओके आम कहीपर जदि गोटे बॉडी रो वेलोसिटी रेगुलरली चेंज आसूची इफ ए बॉडी मेक्स विथ ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओके बॉडी रो जदि वेलोसिटी रेगुलरली चेंज आसूची ताले से केसटा को आम नॉन बैलेंस फोर्स केस रे भी इनक्लूड करि परिबा सिंपली गोटे एग्जांपल लेबी मूविंग कार ओके जदि मोर कारटा मोशन रे अछि आम कहले रेस्ट पोजीशन ले तार नॉर्मल रिएक्शन तार वेट सहित सेम आसूची जदि मो कारटा को मोशन केस को आनिबी मोशन केस को आनले कौन हम ना जदि मोर कारटा मोशन को आसूची ता माने मोशन पाई किए रेस्पोंसिबल फोर्स रेस्पोंसिबल से फोर्स से कोठी पाउची ना ता इंजन पाई ओके जतले कारटा मोर मूव करूची माने कर कार मोशन को हमें कंसीडर करबा ओके सपोज आम कार मोशन को कंसीडर करवा जो कारटा मूव करुच्ची मोशन बेले किए रेस्पोंसिबल ना मोशन बेले फोर्स रेस्पोंसिबल कार फोर्स कौटी पाऊँ ना तार इंजिन पाऊँ देख से पोजिशन रेस्ट रे थिला तार नॉर्मल रिएक्शन अच्छी अपवर्ड वेट अच्छी केते mg रे अच्छी डाउनवर्ड डायरेक्शन रे ओके जोटा कि मोर बैलेंस होगी रोचे आर इक्वल्स टू mg सेकेंड केस आम नवा जदि मोर कारटा मूव कर विथ सम वेलोसिटी v with some velocity v तले वेलोसिटी जदि एक्ट करूची तमने कार कहा पाई मोशन करूची ना फोर्स पाई से फोर्स कोउटी पाउची ना तार इंजन रु पाउची ओके सो सपोज आई टेक द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज f1 force produced by the engine is F1 at the same time when the car moves there is another force exert in between the surface and the tire कार जो टायर आउ से रोड भितर जो फ्रिक्शनल फोर्स आसुची फ्रिक्शनल फोर्स रे डायरेक्शन कोन आसीबो ना अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार जेतु कारटा मूव करजे मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन रे ताले मोर एटे फ्रिक्शनल फोर्स आसला F2 इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन ले ताले F1 टा कोन ना F1 इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ओके सेकेंड नवा कौन ना F2 that is the frictional force between road and tire of the car tires of the car
ओके रोड और कार टायर भीतर जो फ्रिक्शनल फोर्स आसूँ मनकर से F2 ताले मत कहार ऊपर टोटल केतरा फोर्स एक्ट करुचे ना 4टा फोर्स बट R इक्वल टू mg मोर बैलेंस होइक अछि सेकंड एक्स्ट्रा फोर्स देर कोन रहिला ना F2 आउटा रहिला F1 टा फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन F2 इज द फ्रिक्शनल फोर्स if I say F2 and F1 if I say F1 and F2 are of equal magnitude जदि मोर F1 और F2 भी इक्वल मैग्नीट्यूड रे आसीबो ताले मते को से कार ऊपर रिजल्टेंट फोर्स केते हे जिवो ना 0 आसी जिवो इफ आई टाइट हियर ए कंडीशन इफ F1 vector equals to F2 vector F1 vector is equals to F2 vector in such case the resultant force on the car is 0 resultant force on the car is 0 and the car moves with uniform velocity and the car देखो जदि कार ऊपर मोर रिजल्टेंट फोर्स टा 0 आसी जाउची ता माने से कार ऊपर जेतु फोर्स नाही ता माने एटिम कोन करि परबे ना से यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे मूव करिवो एंड द कार मूव्स with uniform velocity okay car moves with uniform velocity and when the car moves with uniform velocity then we can say its acceleration is also 0 okay that is acceleration a equals to 0 acceleration a equals to 0 जदि मोर acceleration a equal to 0 गोटे केस रे पाइले जदि मोर ऑब्जेक्ट रेस्ट अछि ताले सेठी भी 0 acceleration सेकंड केस पाइले कोन ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे मूव करूची जदि गोटे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे मूव करूची ताले से केस रे भी मोर acceleration केते आसीबो ना 0 आसीबो किंतु जदि एठी गोटे केस नै जेबी F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर जदि F1 vector is not equal to F2 vector so what happens then we can say R second case if I put if F1 vector is not equal to F2 vector then the body or the resultant force is on the car is not equals to 0 then F resultant is not equals to 0 यदि F resultant is not equals to 0 it means the car moves with different velocity तमने कौन इंडिकेट करुची ना कार वेलोसिटी रेगुलरली चेंज होउची बा एटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे कार मूव करुची जेतु कार डिफरेंट वेलोसिटी रे मूव करुची सो एक्सेलरेशन ए नॉट इक्वल्स टू केते आसी जिवो ना 0 आसी जिवो ओके एंड this is the condition of non balance force एटा को हमें कहि परिबा that is a non balance force condition so non balance force means if a body moves with change of velocity जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी रेगुलरली चेंज आसुची बा वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड रेगुलरली चेंज आसुची से केस रे हमें कहि परिबा द बॉडी मूव्स विथ non-zero acceleration okay or the body moves with non-uniform velocity understand so this is the case of non-balance force okay but otherwise koi parba non concurrent force if the resultant force acting on a body or resultant force acting at any point is non-zero जदि रिजल्टेंट फोर्स टा नॉन जीरो आसुची सो से केस रे हम कहि पारे दैट इज ए नॉन कनकरेंट टाइप फोर्स ओके सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्स सेकंड केस नबा कोन ना कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम
ओके कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम शुणी वर्ड मोमेंटम कौटी शुणीच ना मोमेंटम कहले तुम कह सर मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हूँ मास इंटू वेलोसिटी को आम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करुचे तेल आम फिजिकली केमती बुझा कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम मोमेंटम को सिंपली लिखा जाए पी वेक्टर मोमेंटम को केमती लिखा जाए ना पी वेक्टर मोमेंटम मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी ओके मोमेंटम इज डिफाइंड एज momentum of a body is defined as the amount of motion contained in a body कंटेंट इन ए बॉडी किसी बुझा पड़ू ना नहीं से कौन अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी इज नोन एज मोमेंटम अमाउंट ऑफ मोशन माने कौन आम कहे मोमेंटम मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी केमती बुझा जिनसा को गोटे छोटिया एग्जांपल देकी बुझा मन कर गोटे कार मूविंग करुच्ची आ गोटे साइकिल भी मूव करुच्ची ओके कार रो वेलोसिटी और साइकिल रो वेलोसिटी सेम अच्छी ओके गोटे कार आ गोटे साइकिल सेम वेलोसिटी रे मूवमेंट करुच्ची आ सेमानकर डायरेक्शन भी सेम अच्छी मन कर तुम जीव बर्तमान कार आ साइकिल को अटकेवा पई ओके कार आ साइकिल सेम स्पीड रे मूव करुच्ची आउ सेम डायरेक्शन में मूव कर बर्तमान तुमको कह तुम दीटा जाक बॉडी को अटकाओ तुम क्या अटकई पार क्या रखीदे पार क्या तुम रेस्ट को आनीपर तुम इजिली गोटे साइकिल को रेस्ट को नहीं आसीपर कहीं ना जेहेतु साइकिल मोमेंटम कौन अच्छी ना स्मॉल अच्छी तेणु साइकिल को तुम इजिली रेस्ट कर देल किंतु कार को तुम रेस्ट कर कि कार को मैं रेस्ट कर नहीं कहीं ना बिकॉज इट्स अमाउंट ऑफ मोशन इज हाई कार जेहेतु अमाउंट ऑफ मोशन हाई आसूची तेल आम कह कार पाखरे अधिक फोर्स दरकार ताको कौन करने ना रेस्ट को आने आउ थे कहूँ कार आ साइकिल सेम वेलोसिटी रे बा सेम स्पीड रे मूवमेंट कर सेम डायरेक्शन तुमको कह कार आ साइकिल दीटा जाक भितर दीटा जाक को अटकवाई तुम क्या इजिली अटकई पार ना तुम इजिली साइकिल टाक रेस्ट को आनीपर मनकर साइकिल स्पीड मनकर 30 अच्छी कार स्पीड भी 30 अच्छी तुम इजिली तुम साइकिल को कौन कर ना रेस्ट कर दे पार कार को पारनी कहीं ना कार हैज द लार्जर मोमेंटम कार जो अमाउंट ऑफ मोशन अच्छी बट कार जो मोमेंटम अच्छी लार्ज अच्छी ओके जेहेतु कार मोमेंटम लार्ज अच्छी सो इट रिक्वायर्स मोर फोर्स ओके ताको अटकवाई कौन दरकार ना लार्ज अमाउंट फोर्स दरकार ओके जोटा कि साइकिल आमर आसुनी साइकिल कौन ना आम कम फोर्स रे भी अटकई पारुचे जेहेतु तार मोमेंटमटा स्मॉल अच्छी बा अमाउंट ऑफ मोशनटा स्मॉल अच्छी ताको आम स्मॉल फोर्स देकी अपोज कर दे परिबा बा रखी दे परिबा किंतु जेहेतु कार रो मोमेंटम लार्ज अच्छी अमाउंट ऑफ मोशन लार्ज अच्छी सो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टू बिकम ए रेस्ट ताको रेस्ट आड़िया आम कौन दरकार ना लार्ज अमाउंट रो फोर्स दरकार okay so momentum is the amount of motion contained in a body okay so momentum kaha upare depend kare na momentum of a body depends upon two quantities one is mass another one is velocity okay so you can say momentum of a body depends upon two quantities number one कौन ना mass of a body कहाँ ऊपर डिपेंड करे बॉडी रो मास ऊपर m सेकंड केस आसे ना वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
velocity of the body से बॉडी रो वेलोसिटी ऊपर भी डिपेंड करे okay so momentum of a body depends upon two quantities that is mass and velocity so body ro mass upare aw tar velocity upare depend करे that's why we can say momentum another definition we can design for the momentum is momentum of a body is the product of mass and velocity आ गोटे पॉइंट एट तुम लिखि पारिबो momentum of a body is a vector quantity momentum of a body is a vector quantity momentum of a body is a vector quantity vector means तार direction अच्छी आ magnitude भी exist करिबो ओके जेतु vector quantity ताले momentum रो direction कोन आसीबो ना momentum is always along the direction of motion ओके momentum ता को direction ले आसीबो ना momentum is always along the direction of motion ओके so direction हम लिखि परिबा the direction of momentum the direction of momentum is along the direction of motion of the body is along the direction of motion along the direction of motion of the body ओके ताले मोमेंटम रो डायरेक्शन कोन ना मोशन लो डायरेक्शन लो ऑलवेज एग्जिस्ट करे कोन ना मोमेंटम ऑलवेज मोमेंटम डायरेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो डायरेक्शन ले तमर मोशन अछि सेही डायरेक्शन ले मोमेंट एग्जिस्ट करबा बुझियला सो अनदर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम एज मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी सो देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम दैट वी कैन राइट दैट इज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of mass and velocity okay so another definition we can say momentum of a body is a vector quantity which is equal to the product of mass and velocity of the body mass and velocity of the body okay so momentum is equal to product of mass and velocity so that's why you can say p equal to mv vector p equals to केते ना mv vector देखो वेक्टर जेहेतु अछि वेक्टर को हम जनरली लिखला बेले ता ऊपर गोटे एरो चिन्ह दिया जाए जे कोन से क्वांटिटी को जते हम वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करछे ता ऊपर एरो चिन्ह दिया जो जदी एरो अछि ता माने वेक्टर जदी एरो नाही ता माने सेटा स्केलर बुझियला तले हम कहू मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी सो p वेक्टर इक्वल्स टू mv वेक्टर ओके सो सिंपली वी कैन से जब मोमेंटम रे यूनिट को तमन लिखिबा देखो जेतु मास और वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करूची तल तमे बे यूनिट लिखि पारिबो ओके जब यूनिट ऊपर आसीबा हम कोन लिखिबा ना मोमेंटम ता काहा ऊपर देखो डिपेंड करूची मास ऊपर और वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करूची जेतु मास और वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करूची ताहले तारे यूनिट कोन लिखिबा unit of p vector unit of momentum okay so as we write p equals to mv देखा मुझे वेक्टर चिन्ह दौनी ता माने मैग्नीट्यूड रे लिखुची p equal to mv मास आउ वेलोसिटी मास रो यूनिट कोन केजी जदि हम एसआई बा एमकेएस रे लिखिबा मास रे यूनिट आसीबो केजी जदि सीजीएस रे लिखिबी मास रे यूनिट आसीबो कोन ना ग्राम ओके जदि हम यूनिट रे लिखिबा एठी केते आसीबो वैल्यूटा सो दैट इक्वल्स टू एसआई और एमकेएस रे जदि एसआई बा एमकेएस रे रिप्रेजेंट करिबा ताले जेतु मास आसुची मास रे यूनिट हैला केजी तापर वेलोसिटी आसुची वेलोसिटी रे यूनिट कोन ना मीटर पर सेकंड ओके सो केजी मीटर पर सेकंड
ओके केजी मीटर पर सेकेंड लिखिपर बाद में ऊपर को जब सेकेंड नहीं जीव केजी मीटर सेकेंड टू दी पावर -1 केजी मीटर सेकेंड टू दी पावर -1 तेल सीजीएस रे केते आसीबो रे पिले सीजीएस रे आमे लिखिबा केजी रो सीजीएस यूनिट कौन ना ग्राम मीटर आम कहे सेंटीमीटर पर सेकेंड ओके आम लिखिपर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू दी पावर -1 बुझीगला सो दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम सेकेंड आसवा डायमेंशन डायमेंशन ऑफ मोमेंटम डायमेंशन ऑफ मोमेंटम केते ना जब डायमेंशन को आसवा देख मोमेंटम कहा ऊपर डिपेंड करछि मोमेंटम टा गोटे फंडामेंटल आसलानी कहीं ना जेहेतु मास और वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करुछि ये फंडामेंटल नुहे गोटे डिराइव क्वांटिटी जदि डिराइव क्वांटिटी ताले p इक्वल टू केते ना mv p इक्वल टू mv ताले डायमेंशन केते लिखिबी डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू मास रो डायमेंशन केते ना m1 मास रो डायमेंशन है m1 v रो डायमेंशन केते ना l1 t -1 l1 t -1 ताले मोमेंटम रो डायमेंशन केते आसला m1 l1 t -1 सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम बुझीला ना बुझीलानी एबे गोटे न्यू थिंग्स ऊपर देखिबा जतले हम गोटे बॉडी देखो एटा हम कहूचे मन रखिबो जिंसटा p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ओके जदि समस्त आइंस्टाइन थ्योरी ऊपर जानि थिबो आइंस्टाइन थ्योरी के कोन कह जाए आइंस्टाइन को कह जाए रिलेटिविटी रो जनक बोली ना नहीं आइंस्टाइन समझते शुणी थी आइंस्टाइन को कौन कह जाए ना फादर ऑफ रिलेटिविटी जो तुम पाच E इक्वल्स टू mc स्क्वायर या माने कौन E इक्वल टू mc स्क्वायर रो माने कौन बुझुच ना मास कैन कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास टा एनर्जी को कन्वर्ट हो पार एनर्जी टा मास को भी कन्वर्ट हो पार ता माने मोर ये मास टा फिक्स नुहे मास इज नॉट कांस्टेंट इन रिलेटिविटी मास इज नॉट कांस्टेंट कहीं कांस्टेंट नुहे ना मास टा कोठी चेंज हो पार एनर्जी को चेंज हो पार एनर्जी टा कोठी चेंज हो पार ना मास को चेंज हो पार जेहेतु मास टा एनर्जी को चेंज होची ताले मु कहि परिबिनी मास टा कांस्टेंट तेणु दीटा मेकानिक्स आसे ओके जेते मास को हमें कंसीडर करूँ से मो दीटा कॉन्सेप्ट को आसे गोटे है न्यूटोनियन मेकानिक्स आ गोटे है रिलेटिविस्टिक मेकानिक्स ओके जब हम न्यूटन्स थ्योरी को आसीबा न्यूटन्स थ्योरी सेज मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट न्यूटोनियन मेकानिक्स टू अदरवाइज कह जाए क्लासिकल मेकानिक्स ओके मन रखिबा न्यूटोनियन मेकानिक्स टू जरा न्यूटन को डिस्क्रिप्शन ले अछि न्यूटन को थ्योरी अनुसार मास इज ऑलवेज कांस्टेंट ओके न्यूटन जोड़ा कहले मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट किंतु आइंस्टाइन कहले कौन ना मास टा कांस्टेंट नुहे मास टा कोठी चेंज हो पार ना एनर्जी को चेंज हो पार एनर्जी टा मास को भी चेंज हो पार केते बेले ना इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स नियरली द स्पीड ऑफ लाइट एटा केतेबेले पॉसिबल ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड रे मूव करे बा नियरली इक्वल टू द लाइट स्पीड रे मूव करे ताले तार मास टा एनर्जी को चेंज होबो एनर्जी टा भी मास को चेंज हो तेणु मोमेंटम ऊपर मोर दीटा कांसेप्ट आसे गोटे है न्यूटोनियन मेकानिक्स आ गोटे है मोर रिलेटिविस्टिक थ्योरी ओके न्यूटोनियन मेकानिक्स को हम कहे नॉन रिलेटिविस्टिक कांसेप्ट ओके तो मोमेंटम आम नौचे आम दीटा कॉन्सेप्ट नवा नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ओके ताले ये दीटा जिनस मार्क करवा गोटे है कौन ना नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम टा कहा पई आसुची ना न्यूटोनियन थ्योरी पई आसुची न्यूटोनियन मेकानिक्स पाई
पढ़ा पिले आस्ते आस्ते आम सब गुड़ाक पढ़ा ओके कौन न्यूटोनियन मेकानिक्स कौन बा आइंस्टाइन मेकानिक्स कौन सब पढ़ा न्यूटोनियन मेकानिक्स कौन ना मास इज ऑलवेज कांस्टेंट जेटा आम गोटे नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम गोटे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल for non-relativistic particle mass is constant, mass is always constant, mass is always constant. That is also said by Newton. Okay, mass of a body is always constant. Okay, जदि mass of a body is always constant तो हम कहते नॉन रिलेटिविटी जदि रिलेटिविटी ने भी तो बॉडीटा मोर लाइट स्पीड को जीव लाइट स्पीड रे मूव कले मासटा मोर चेंज हम मासटा मोर चेंज हम किंतु जदि हमें लेस स्पीड रे मूव करिया लाइट स्पीड रे नुहे जदि लेस स्पीड रे मूव करिवा तले मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड ए नॉन रिलेटिविस्टिक माने कोन ना जदि गोटे बॉडी लेस स्पीड रे मूव करूची ताले हम ताको नॉन रिलेटिविस्टिक दबा रिलेटिविस्टिक केते बेले दबा ना जदि गोटे बॉडी मोर लाइट स्पीड नियरली इक्वल टू लाइट स्पीड रे मूव करूची ताले से हम दबा रिलेटिविटी ओके सो जेहेतु मासटा कांस्टेंट ताले फार्मूला केते आसीबो ना p इक्वल टू mv सो नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी अनुसार p इक्वल्स टू mv इज करेक्ट p इक्वल टू mv इज करेक्ट किंतु जदि हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम नबा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ओके जदि मु रिलेटिविस्टिक मोमेंटम नेबी एज पर आइंस्टाइन मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट ओके सो एज पर रिलेटिविटी फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रिलेटिविस्टिक माने कौन कहली जदि गोटे ऑब्जेक्ट नियरली इक्वल टू लाइट स्पीड मूव करे लाइट रो स्पीड केते लाइट रो स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट रो स्पीड होची 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मास इज नॉट कांस्टेंट for non-relativistic relativistic particle mass is not constant जदि mass constant नुहे ताल से mass को हमें केमती लिखि परिबा so mass can be written as ताले नॉन रिलेटिविस्टिक पाई मास केते लिखि परिबा मास इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c² रूट ओवर ओके ताले मास टा केते आसीबो ना मास इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c² m नॉट ता माने को जाय तारो बॉडी रो रेस्ट मास बा तुम कहि परिबो जेटा एक्चुअल मास ताले ऑब्जेक्ट जेतबे तुम रेस्ट अछि त मास को हम वेट नबा जोटा हम पाइले सेटा हला तार एक्चुअल मास v टा कोन हैला ना दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी से बॉडी रो वेलोसिटी c टा कोन ना c होची वेलोसिटी ऑफ लाइट c टा होची से ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी ऑफ लाइट v टा हला वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड m0 टा हला रेस्ट मास आ m टा कोन ना m टा होची मेजर्ड मास बा में कहि परिबा ऑब्जर्व कहीं कहे ना एम टा तुम से मेजर हम जो बॉडीटा तुम लाइट स्पीड नियरली इक्वल स्पीड मूव कर लाइट स्पीड पाखापाखि मूव कर मैंने 3 × 10⁸ जदि अच्छी मोर कौन हो 2.8 × 10⁸ हो पार 2.5 × 10⁸ हो पार नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करनी स्पीड ऑफ लाइट पाखापाखि 2.5 हो पारे 2.8 हो पारे 2.7 हो पारे ओके सो मास इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द बॉडी आ ऑब्जर्व मास टा केतेबेले आसीबो ना जदी से बॉडी लाइट स्पीड रो नियरली इक्वल स्पीड रे मूव करतबा ओके ताहले मते को जदी m मास इक्वल टू आसला m नॉट बाय 1 माइनस v²/c² m नॉट बा तुम सिंपली पढ़ी परिबो m0 ओके सो मोमेंटम केते हिजो ताहले सो मोमेंटम
ताले गोटे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मोमेंटम केते हिजबो ना p इक्वल टू एम बी वेक्टर बट m इक्वल्स टू केते ना m इक्वल्स टू m नॉट v डिवाइडेड बाय m naught v divided by, let's write in magnitude form, so m v, so that equals to mv by 1 minus v square by c square root over. Okay, so that is the momentum for a relativistic particle. Okay, relativistic माने बुझी पारलो जदि गोटे ऑब्जेक्ट वेक्टर फॉर्म रे देले किछि भी प्रॉब्लम नाही तमे जे चाहू वेक्टर फॉर्म लिखिया पई वेक्टर सिंबल दे दियो एठी भी दे पारिबो एठी भी दे दबो तळे वेक्टर रे चहिबोनी काहे कि स्क्वायर रे अछि स्क्वायर थिले सेटा मैग्नीट्यूड हे जाय. ओके, ताहले मते कह सर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल पई हमें मोमेंटम केते पाइले ना p इक्वल टू m नॉट v बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो रूट ओवर जेहेतु गोटे ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड रो नियरली इक्वल टू स्पीड रो मूव करे ता मास टा कोन हुए रेगुलरली एनर्जी को चेंज हो जाए बा मास टा कांस्टेंट नुहे तेणु कांस्टेंट जेहेतु नुहे ताले हमर मोमेंटम रे एक्सप्रेशन आसीबो एतिकी बुझियला. सो दिस इज अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम. ओके, एबे हम कौन डिस्कशन करबा एबे जो लॉज ऑफ मोशन रो एक्चुअल टर्म्स को आसीबा जेरा हम लॉज ऑफ मोशन लेबडा थिला कोन ना तार इंट्रोडक्शन पार्ट जोड़ा कि हमें बहुत इंपोर्टेंट पार्ट बोली कहि परिबा कारण एबडा न बुझिला तमे अदर पार्ट्स उडा को जानि परिबो नाही. ओके, एबे आसीबा कोन ना जो लॉज ऑफ मोशन रे हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िया पई चाहूचे. लॉज ऑफ मोशन को जनरली हम कहूचे न्यूटोनियन थ्योरी. लॉज ऑफ मोशन को हमें कहा ऊपर पढ़िबा ना न्यूटोनियन थ्योरी ऊपर पढ़िबा. न्यूटोनियन थ्योरी कौन कहूची ना जते हमें लॉज ऑफ मोशन नौचे मेनली हम एठी कौन करूचे ना न्यूटन को थ्योरी ऊपर पढ़िबा. न्यूटोनियन मेकानिक्स बोली कहि परिबो ये सब को हमें न्यूटोनियन मेकानिक्स कहूचे. न्यूटोनियन मेकानिक्स माने कौन ना इफ वेलोसिटी इज वेरी मच लेस देन c. ओके, जदि मोर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरी मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन दैट मेकानिक्स इज कॉल्ड न्यूटोनियन मेकानिक्स. बा एटा को अदरवाइज कह जाए क्लासिकल मेकानिक्स. क्लासिकल मेकानिक्स मेकानिक्स माने कौन ना मोशन. ओके, मेकानिक्स माने मोशन किंतु से मोशन टा कौन आसीबा दरकार ना v वेरी मच लेस देन c. v टा कौन ना वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सेकंड कहूचे c टा कौन ना वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट जेटा हम कहते 3 into 10 to the power 8 meter per second, very much high. Okay, so if v very much less than c, then the motion of the body is taken under Newtonian mechanics or classical mechanics. Classical mechanics. So it mainly में कौन पाइबा ना here mass of a body is always constant. Here mass of a body is always constant. ताले क्लासिकल मेकानिक्स रे मास ऑफ द बॉडी कौन आसीबो ना ऑलवेज कांस्टेंट बा जेटा हम कहि पारे मास ऑफ ए बॉडी नेवर चेंजेस. ओके, सो मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट और रिमेन्स सेम. ओके, बा तुम कहि परिबो रिमेन्स सेम और रिमेन्स सेम.
से बॉडी मास के चेंज हम ना कौटी ना न्यूटोनियन मेकानिक्स बा क्लासिकल मेकानिक्स रे क्लासिकल मेकानिक्स केतेबेले आसीबो ना v वेरी मच लेस देन c वेरी मच लेस देन c आमे कहि पारे 10 मीटर पर सेकंड देखो एटा 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड जदि गोटे ऑब्जेक्ट मु कहबी 10 मीटर पर सेकंड रे जाउची 20 मीटर पर सेकंड रे जाउची बा 50 मीटर पर सेकंड रे जाउची बा 100 मीटर पर सेकंड रे जाउची ए सब केस रे ऑब्जेक्ट जो मास अछि से मासटा कोन रहइबो ना कांस्टेंट रहइबो ओके जब आम नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट को पळेबा सेटा रिलेटिविटी पार्ट को पळेबो सेटा आम कहबा मास इज वेरिएबल रिलेशन कोन कहली m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो रूट ओवर बुझी हला ओके एबे हम पढिबा कोन ना इनर्शिया ओके एबे हम मेन पाठ को आसीबा जेरा हम कहउचे इनर्शिया इनर्शिया कोन रे पिले जेरा तुम कहउचे जड़त्व इनर्शिया माने कोन ना जड़त्व इनर्शिया कहले हम कोन बुझिबा देखो इनर्शिया केते पिला अछन देखो अंडा केते पिला अछन इनर्शिया 60 ओके देखो इनर्शिया मेनली हम कोन कहू छे ना इनर्शिया को बुझिया पय हला मोर छोटे एग्जांपल नबा ना नहीं इनर्शिया हम कहू छे जड़त्व इनर्शिया मींस इट इज ए प्रॉपर्टी गोटे बॉडी रो प्रॉपर्टी बा कैरेक्टरिस्टिक्स ओके जे बॉडी पाखरे से एग्जिस्ट करूची एटा से बॉडी पाखरे एग्जिस्ट करूची तार प्रॉपर्टी बा ता कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट oppose the change in its state तार स्टेट को से चेंज करिया पई कोन करे ना अपोज करे until and unless external force is applied on it जते पर्यंत हमें बाह्य बल प्रयोग न करिचे सेते पर्यंत से ऑब्जेक्ट तार स्टेट को चेंज करिवो नाही जेरा तुम विज्ञान बही रे पढिचो बाह्य बल अप्लाई न करिबा पर्यंत गोटे गतिशील वस्तु गतिशील रहिबो स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो ओके जते पर्यंत हम कौनसी बाह्य बल प्रयोग न करिचे ऑब्जेक्ट उपरे सेते पर्यंत गोटे गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था रे रहिबो स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था रे एग्जिस्ट करिवो जोटा हम कहउचे इनर्शिया ओके इनर्शिया मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज अपोज टू चेंज इट्स स्टेट of rest or uniform motion until and unless an external force is applied on it लिखिबा इटी inertia it is a property it is the property of an body property of any body by virtue of which it opposes to change its state of rest or uniform motion state of rest or uniform motion until and unless an external force acting on it external force is acting on it okay जते पर्यंत आम गोटे ऑब्जेक्ट उपर एक्सटर्नल फोर्स बा बाह्य बल प्रयोग न करिचे सेते पर्यंत स्टेट बा तार स्थिति परिवर्तन करिवो नाही ओके सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज अपोजेस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force applied on it okay जते हम external force ता ऊपर
अप्लाई न करिचे स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो गतिशील वस्तु गति करिबो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ओके इनर्शिया को हमें मेनली तीनटा पार्ट रे डिवाइड करूचे इनर्शिया को हमें कौन कहूचे ना इट इज मेनली थ्री डिफरेंट टाइप्स ओके स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन आउ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करिकि इनर्शिया को मैं तीनटा पार्ट डिवाइड करूचे गोटे हला कौन ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट सेकंड को कौन कहूचे ना इनर्शिया ऑफ मोशन थर्ड को कहूचे कौन ना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन गोटे गोटे पार्ट को आम डिस्कसन करवा फर्स्ट मन कर आसवा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फर्स्ट आम हेडिंग दबा इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब आम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आम मेजर करने नौचे इनर्शिया ऑफ रेस्ट ताले इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आम कौन नहीं पारिबा ना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आम नहीं पारिबा ई टाइप रे रेस्ट माने कौन आम कहे स्थिर रेस्ट माने स्थिर जो गोटे ऑब्जेक्ट को जो आम रेस्ट रखापी चाहूचे मनकर ये कौन अच्छी ना ये ऑब्जेक्ट को ये जो चक अच्छी ये प्लेस करदेली ओके ये प्लेस करा मनकर मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी तो ये कौन मोशन कर कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी ये कौन स्टेट चेंज करदेव कि चेंज करना जो पोजिशन ले अच्छी से पोजिशन बाहर जो देखुच गोटे पत्थर पड़ी जो तुम ताको न उठेब से सेमती पड़ी ना नहीं तमें आम कहे जदि आम कौन एक्सटर्नल बाह्य बल प्रयोग न करुचे ताले स्थिर वस्तु स्थिर ओके दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओके सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी दैट अपोज टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओके हम कहवा इनहेरेंट प्रॉपर्टी बा अनचेंज प्रॉपर्टी ओके सो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body by virtue of which a body unable to change or opposed to unable to change its state of rest until and unless an external force is applied to it जते पर्यंत आम बाह्य बल प्रयोग न करुचे स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो ओके दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो वस्तु स्थिर अच्छी से स्थिर रहिबो ओके दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओके ताले गोटे एग्जांपल नबा बुझिबा पई ओके पिला माने तुम सब बस रे जाइथिबो ना नहीं जते बसटा तुमको छिड़ा होती बस स्टैंड रे तुम गल सीट रे बसी गल ना नहीं जो बस देख बस भी रेस्ट अच्छी तुम्हें भी रेस्ट अच्छ किंतु तुम कौ पर्सनटा बस सहित लगी तुम जो लोअर पार्ट जेटा तुम कहो फुट ओके फुटा तुम क्या सहित आटाच होता है तुम सीट्रे बसीच ताले फुटा तुम क्या सहित आटाच ना बस सहित आटाच ओके जेहेतु बस सहित आटाच बस भी रेस्ट अच्छी तुम्हें भी रेस्ट अच्छ जदि बसटा सडनली स्टार्ट हो पड़ो जब बस को आम सडनली स्टार्ट करदे ताले तुम केमी फिल कर देख तुम गोटे बैकवर्ड जक फिल कर तुम पछकू कौन हम ना पछकू टे ठेली पछकू ठेली गल कहीं ना तुम जो बसटा मुव करुच्ची जो बसटा तुम मोशन को आसूची बस सहित तुम बॉडी कौ पार्टा आटाच होती बस सहित तुम फुट पार्टा आटाच होती तेणु फुट पार्टा कौन है ना बस मुविंग करने सहित सी भी मोशन को आसीगला किंतु जोटा तुम कहो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ओके सो एज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट कनेक्टेड विथ द बस सो इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट
ओके से सही स्टेट को कौन करने चाहिए ना मेंटेन करने चाहिए से कौ स्टेट रे थिला ना रेस्ट स्टेट रे थिला जब रेस्ट स्टेट अच्छी से रेस्ट स्टेट मेंटेन करिवो जदि रेस्ट मेंटेन करिवो ता माने सेति में कौन हुए ना गोटे बैकवर्ड जर्क फील करू बा पछकु टिके ठेली जाऊ ना नहीं सो वी कैन से ए मैन suffers backward jerk as the bus suddenly starts, okay, and it is because the lower part of the body is connected with the bus, so it moves along the bus, but upper part of the body is at the state of rest, so that's why it always suffers a backward jerk. ओके आ गोटे एग्जांपल आम नहीं पार तुम कॉइन आउ ग्लास कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट करिथिबो कॉइन आउ ग्लास आउ कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट करिथिबो जदि आम गोटे कॉइन बा ग्लास ऊपर सिंपली गोटे एग्जांपल ये तुमको देखै पारिबी सपोज नीलद्री सिर्फ कार्डबोर्डटा देन ओके सपोज यहाँ है गोटे ग्लास या ऊपर कौन करवा ना गोटे कार्डबोर्ड रखीदेली ग्लास उपरे कार्डबोर्ड गोटे प्लेस करदे ये कार्डबोर्ड उपरे कौन करी ना गोटे कॉइन प्लेस कर दियो कार्डबोर्ड उपरे गोटे कॉइन प्लेस करदेली देख कॉइनटा मोर कौन अच्छी ना कॉइनटा रेस्ट अच्छी कहीं रेस्ट अच्छी ना यार नॉर्मल फोर्स आ वेटटा ता सहित बालांस होइके अच्छी जेहेतु नॉर्मल फोर्स आ वेटटा बालांस होइके अच्छी ताले आम कहि परिबा कॉइनटा रेस्ट अच्छी एबे कौन करिवि ना कॉइन को मु डिस्प्लेस करिवि नाही ए जो कार्डबोर्ड अच्छी से कार्डबोर्ड को मु डिस्प्लेस करिवि ताले कार्डबोर्ड को जब डिस्प्लेस करी कॉइन कौन कर देख कॉइन उपर आम किसी फोर्स अप्लाई करवानी देख आम कौ टाइप नवा जेहेतु कार्डबोर्ड उपर मु कॉइनटा रेस्ट पोजिशन रखी देख मुझे कार्डबोर्ड को टिक मारिदेवी कॉइनटा कौटी रहा कॉइन कार्डबोर्ड सहित जाऊँगी कि कॉइन से ग्लास भितर को पड़गला कहीं ना कॉइन जो पोजिशन रे थिला से सही पोजिशन को मेंटेन करने चाहूँगी कॉइन जो पोजिशन रे अच्छी सही पोजिशन को मेंटेन करने चाहिए तेणु से कार्डबोर्ड सहित न जाए कि कार्डबोर्ड मोशन को आसला कि कॉइन तार स्टेट चेंज करूनी तेणु से कौन है ना ग्लास भितर ही आसी जाऊँगी ग्लास भितर को ड्रप हो गला ओके कॉइन देख रेस्ट अच्छी आम ग्लास कार्डबोर्ड को कौन करवा ना मोशन करवा जब कार्डबोर्ड को मोशन करवा ताले कॉइनटा कौन आसूची ना सेम स्टेट को से मेंटेन करने चाहूँगी तेणु से ग्लास भितर को आसी जाऊँगी सो वी कैन से व्हेन वी मेक द मोशन ऑफ ए कार्डबोर्ड then the coin drops into the glass in order to maintain its state तार स्टेट को मेंटेन करने से कौन होची ना से ग्लास भितर ही ड्रॉप हो जाऊँगी ओके सो दिस आर द टू एग्जांपल्स ऑफ inertia of rest okay so in next class we will discuss about the inertia of motion and inertia of direction so this is all about for the today's section okay thank you